السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی ایپیسوڈ 42 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سب بہت اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، 350 لائک اور 130 کمنٹ ڈن کریں۔ جب تک ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا تب تک نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ میں بہت محنت کر رہی ہوں لیکن مجھے میری محنت کا صلہ اس طرح نہیں مل رہا۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اپنی محنت کو یوں ضائع ہوتے دیکھ کر۔ اتنی محنت سے میں ایپیسوڈ لکھتی ہوں، وائس اوور کرتی ہوں، لیکن آپ لوگ ایک لائک ایک کمنٹ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میں کتنی بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ایک لائک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک لائک مطلب 10 لوگوں کو یوٹیوب ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہمارے لیے ایک ویوز کیا معنی رکھتا ہے۔ اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں دیتی کہ آپ لوگ پورا نہ کر سکیں۔ پلیز میرے محنت کی قدر کر کے اس چھوٹے سے ٹارگیٹ کو پورا کر دیجئے۔ ایک تو یوٹیوب پر ویسے ہی پرابلم چل رہی ہے، مجھے نہیں پتہ باقی کنٹری کا کیا حال ہے، بٹ یہاں بہت پرابلم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ بھی ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو پلیز اس چھوٹے سے ٹارگیٹ کو پورا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ آئی لو یو آل۔ اچھا میں بتا دوں، جیسے کہ کل میرا برتھ ڈے تھا، تو کل پورا دن بھائی ہم نے کچھ کام نہیں کیا تھا، ہم کر ہی نہیں پائے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ سب لوگ مطلب ماشاءاللہ گھر آ گئے تھے اور بس پورا دن انہی کے ساتھ نکل گیا تھا۔ بٹ انشاءاللہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، جیسا ہم نے پرومس کیا ہے کہ 2-3 دن ہم 2 ایپیسوڈ دیں گے، تاکہ ہماری یہ جو ہم نے 2-3 دن گزارے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ چلیں جی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ علی نے جنان کو مضبوط حصار میں لے کر گھراتے ہوئے عمار سے پوچھا۔ وہ جو ابھی بھی جنان کو دیکھ رہا تھا، علی کے پوچھنے پر علی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ پوچھا ہے؟ جواب دو مجھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اگر یہاں پر آئے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے ہمیں آواز دے کر روکنے کی؟ علی نے پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ 2 قدم چل کر ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ اس کے قریب آنے پر جنان ڈر گئی۔ دور رہ کر بات کرو۔ اسے قریب آتا دیکھ کر علی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ عمار کے آگے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی، اس نے پھر کہا۔ کیا بات کرنی تھی؟ اور اب کیا رہ گیا ہے باتیں کرنے کے لیے؟ علی نے پوچھا۔ اس کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، عمار نے جنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں لمحہ بہ لمحہ خوف اترتا جا رہا تھا۔ اس کا نازک سا دل سینے کے اندر پھڑپڑا رہا تھا۔ یہ بڑبڑا لکھا گیا کہ پھڑپڑا رہا تھا۔ کس بات کے لیے؟ علی نے اس طرح پوچھا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اس کے پوچھنے پر عمار نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ میری فیملی نے آپ لوگوں کے ساتھ، جنان کے ساتھ۔ میری بہن کا نام اپنی زبان سے مت لینا، اگر میری بہن کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ علی نے اس کے جنان کا نام لیتے ہی گھبرا کر کہا۔ اس نے علی کے گھبرانے پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ مجھے اپنی فیملی کی بات میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، اس دن کے بعد سے ایک لمحہ بھی میں نے سکون کا نہیں گزارا۔ آپ کو پتہ ہوگا دکھا کے فوراً بعد مجھے باہر چلے جانا تھا، میں وہاں بھی نہیں جا پایا۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ میرا ضمیر ہر لمحے مجھے کچونکے دیتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ اگر اس دن میں اپنے گھر والوں کی باتوں میں
نہ آتا، اپنی عقل کا استعمال کرتا تو آج آپ کی بہن کی زندگی خراب نہ ہوئی ہوتی، آج وہ دشمنوں کے بیچ نہ ہوتی۔ اب کی بار اس نے جنان کا نام لینے سے گریز کیا۔ وہ تینوں خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، جبکہ جنان کے اندر ایک شور برپا ہوا تھا۔ اسے اس مرض سے گھن آ رہی تھی۔ پلیز آپ سب معاف کر دیں، آپ سب مجھے معاف کر دیں، میں بہت بے چین ہوں۔ اگر آپ لوگ اور آپ کی بہن مجھے معاف کر دے گی تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اب کی بار اس نے سر اٹھا کر کہا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جنان نے نفرت سے اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ قصہ اسی دن ختم ہو گیا تھا۔ اب معافی مانگنے کا مطلب؟ اور ایک بات بتاؤ، تمہارے معافی مانگنے سے گزرا وقت لوٹ آئے گا؟ وہ سب کچھ جو ہمارے گھر والوں نے میری بہن نے برداشت کیا، تمہاری معافی مانگنے سے ان سب تکلیفوں کا، دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا؟ نہیں نا؟ تو اپنی معافی اپنے پاس رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ ہمیں یا میری بہن کو تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، علی نے اسے راستہ دکھاتے ہوئے کہا اور خود جنان کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ میری بات سنیں، عمار ایک دم ان کے سامنے آ کر بولا تو جنان اور خوفزدہ ہو گئی۔ لگتا ہے تمہارے کان خراب ہیں، کہو تو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ فائق نے آگے بڑھ کر کہا تو علی نے ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اگر اسے تماشا کرنا ہی ہوتا تو اب تک اس کی باتیں نہ سنتا۔ بوئی، فائق نے علی کو دیکھا۔ شانت، میں بات کر رہا ہوں نا، علی نے کہا۔ علی جتنا شانت تھا، اس کا غصہ اتنا ہی خطرناک تھا۔ اس کے غصے سے سب ڈرتے تھے، لیکن اس وقت اپنی بہن کی وجہ سے اپنے غصے سب کیے بات کر رہا تھا۔ اگر جنان اور معذلہ نہ ہوتی تو اس وقت وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کا حشر کر دیتا۔ مجھے سنائی دے گیا ہے، لیکن میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگ، اسپیشلی آپ کی بہن، مجھے معاف نہیں کر دے گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جوڑتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ معاف کر دیں گے تو مجھے سکون آ جائے گا، عمار نے جنان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو اس نے خوف سے علی کی طرف دیکھا۔ علی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معاف کر دو اور پیچھا چھڑاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے تم کو معاف کیا، اب تم جاؤ یہاں سے اور کبھی بھی ہمارے سامنے مت آنا، جنان نے ہمت کر کے کہا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، عمار نے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ مل گئی تمہیں معافی، اب نکلو یہاں سے اور آئندہ کبھی نظر مت آ جانا، اور کبھی کہیں غلطی سے ملاقات بھی ہو جائے تو نظر بچا کر نکل جانا۔ کبھی آواز دے کر ٹھوکا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے بہت کچھ باور کرایا۔ نہیں آؤں گا، مجھے معافی مل گئی ہے، مجھے سکون آ گیا ہے، اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جنان نے خوف سے اسے دیکھا، پھر علی کا بازو ہٹا کر ایک دم اس کی پشت کے پیچھے جھک گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں سنائی نہیں دی میری بات، اس کے قریب آنے پر علی نے گھبرا کر پوچھا تو وہ بنا کچھ کہے اس کے گلے لگ گیا۔ اس کے گلے لگتے ہی جنان ایک دم علی کی پشت سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ علی عمار کے اس قدم پر حیران رہ گیا۔ بہت بہت شکریہ، اس کے گلے لگ کر عمار نے کہا اور اس سے دور ہو گیا اور مسکرا کر جنان کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر جنان نے
एकदम रुख बदल लिया। चलो यहाँ से। अली ने अमार को देखते हुए इन सब से कहा और जनान का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फाइक और माजला बिन के पीछे पीछे चल दिए। जनान की हालत बुरी हो रही थी। इस अपने हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। तुम ठीक हो ना? माजला ने इसके दोनों हाथ थाम कर पूछा तो जनान ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बी ब्रेव। अली ने मुड़कर जनान से कहा तो वो बस इसे देखती रह गई। डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। फाइक ने कहा तो ना चाहते हुए भी इसके होंठों पर मुबहम सा तबस्सुम बिखर गया। इसके मुस्कुराने पर अली ने सुकून का सांस लिया और वहां से गाड़ी निकाल ली। अली के वहां से गाड़ी निकालते ही अमर ने एक तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इसके होठों पर शातिराना मुस्कुराहट थी। इसने मुस्कुराकर सामने खड़े शख्स को थम्स अप का साइन दिखाया और हंसता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। वो गहरी नींद में सो रही थी जब इसको अपने फ़ोन की रिंग सुनाई दी। इसने बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर मुंदी मुंदी आंखों से स्क्रीन को देखा, लेकिन स्क्रीन पर जगमगाते बख्त खान के नाम को देखकर वो एकदम उठकर बैठ गई। हेलो, इसने बेचैनी से हेलो कहा। अस्सलाम वालेकुम, जबकि सामने से जनान को बख्त खान की भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी जिसमें सुकून ही सुकून था। खान, जनान ने कहा। बख्त खान ने हुनकारा भरा। तुम ठीक है? इसने पूछा। जवाब में बख्त खान के होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी जिससे बख्त खान को कोई जब से बख्त खान को गोली लगी थी तब से ये औरत इसके लिए परेशान और फिक्रमंद रहने लगी थी और इसे जनान का ये फिक्रमंद अंदाज इसके लिए परेशान होना बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके लिए इसकी मोरी, इसकी बहन, इसकी दादी, वो सब औरत परेशान होती हैं, लेकिन जो लज्जत इसे जनान के परेशान होने से खुद में महसूस होती है वो किसी के परेशान होने से नहीं होती। जवाब दो खान, तुम ठीक है ना? इसने फिर कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बख्त खान ने जवाब दिया तो जनान ने सुकून का सांस लिया। तुमने तो सुबह सुबह हमको फ़ोन करके डरा दिया, वो कुछ खफा से अंदाज में बोली। सुबह नहीं हो रही है मैडम, घड़ी में टाइम देखो, 8 बज रहे हैं। बख्त खान ने अपने हाथ में बंदी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। हाँ तो सुबह का ही 8 बज रहा है ना? हाँ तो सुबह के 8 बज रहे हैं खान, इसने कहा। हाँ, इसीलिए उठो और तैयार हो जाओ, मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। बख्त खान ने एक कट पर गाड़ी मुड़ते हुए कहा। क्या? इसकी बात सुनकर जनान को झटका लगा। क्या क्या? सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? तैयार हो जाओ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, इसने फिर कहा। कहाँ पर? जनान ने हैरत से पूछा। तुम्हारे घर? और कहाँ पर? मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे तुम्हारे घर पहुंचने में। 15 मिनट में तुम अपना सामान समेटो। 15 मिनट में तुम अपना सामान समेत बाहर आओ, बख्त खान ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। जनान हेलो हेलो करती रही लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आया। खान क्या करता है तुम? जनान ने अपने सर को दोनों हाथों में थामते हुए कहा और बिस्तर से उठकर अपना सामान पैक करने लगी। वो जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी। अपना सारा सामान पैक करके वो लगेज ट्रॉली उठाकर कमरे से निकली।
खैर है? इसे सामान के साथ आते देखकर अहमद साहब बोले, जी बाबा, सब ठीक है, वो खान हमको लेने आ रहा है। जनान ने इनके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारा शोहर तुम्हें लेने आ रहा है? सवाल अली ने किया। जी, इसने जवाब दिया। लेकिन बेटा, अभी तो एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। इसकी मौज आकर बोली, हाँ, लेकिन हम क्या करें? अभी कुछ देर पहले खान का फ़ोन आया है, वो बस पहुंचने वाला है। इसने अफसरदगी से कहा, ये क्या बात हुई? तुम्हें तो कल जाना था। आज़ाला भी कुछ अफसरदा होकर बोली, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने घर। अहमद साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तभी इन्हें घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। खाना आ गया, हम चलता है, कहते हुए वो उठी। अंदर नहीं आएंगे? अली ने पूछा। जवाब में जनान खामोश रही। रुको, मैं बुला कर लाता हूँ, कहते हुए अली बाहर चला गया। जनान इसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोक पाई। अली गेट से निकलकर बख्त खान की गाड़ी के पास आया। इसे आता देखकर बख्त खान ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, कैसे हैं आप? अली ने सलाम करके पूछा। मैं ठीक हूँ, बख्त खान ने जवाब दिया। अंदर आए? अली ने कहा। नहीं, बस तुम मेरी बीवी को भेज दो। बख्त खान ने कहा, आप आए तो सही, पहली बार आए हैं, बाहर से थोड़ी चले जाएंगे। अली ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम बस मेरी बीवी को भेज दो, फिर हमें निकलना है। बख्त खान ने कहा। अली ने इसके बाद इसे ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। वो सर को हिलाता अंदर चला गया और कुछ देर बाद जनान सब लोगों के हमरा घर से बाहर आ रही थी। जनान की सब आंखों में आंसू की नमी थी। इसकी आंखें देखकर इसे अंदाज़ा हो गया कि वो अंदर रो कर आई है, और वाकई वो सबसे मिलकर रो कर आई थी, और सबसे ज़्यादा अपनी मौज और इसहाक साहब से। इसके करीब आते ही जनान ने इसे घूर कर देखा। बख्त खान ने इसके घूरने का कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि गाड़ी का गेट खोलकर वो बाहर निकला और सबसे मिलकर इसके हाथ से लगे ट्रॉली लेकर डिग्गी खोलकर इसमें रखा और पैसेंजर सीट के पास आकर इसका दरवाज़ा खोलकर इसके आने का इंतज़ार करने लगा। जाओ बेटा, और अपना ख्याल रखना, अहमद साहब ने इसे खुद से लगाते हुए कहा। वो अहमद साहब के गले लगी और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही बख्त खान ने दरवाज़ा बंद किया और अहमद साहब से हाथ मिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पता नहीं अली ने अंदर सबसे क्या कहा था जो किसी ने भी बख्त खान से अंदर आने का नहीं पूछा था, ना आने का ना नहीं पूछा था। क्या हुआ, वो क्यों फूला हुआ है? बख्त खान ने पिछली सीट पर रखे शॉपर में से बर्गर निकाल कर खाते हुए जनान से पूछा, जो मुंह फैलाए से देख रही थी। इसके पूछने पर भी जनान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब इस पर से नजर हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। बर्गर खाओगी? वक्त खान ने इससे पूछा। जनान ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। यार, खाकर देखो, बड़े मज़े का बर्गर है। आते हुए सगीरा बुआ ने मुझे पैक कर दिया था। वक्त खान ने एक और बाइट लेते हुए कहा, हमको नहीं खाना, तुम खाओ, तुमको ज़्यादा भूख लगा है, जनान ने चिढ़कर कहा। बख्त खान इसके अंदाज पर मुस्कुराया। इसी वक्त जनान ने इसकी तरफ देखा और इसे मुस्कुराता देखकर इसके तन बदन में आग लग गई। तुम मुस्कुरा रहा है? जनान ने कहा। हाँ, बख्त खान ने सहूलत से जवाब दिया। क्यों क्यों मुस्कुरा रहा है तुम? वो अपना रुख इसकी तरफ करके थोड़ा गुस्से में बोली, मेरा दिल कर रहा है इसलिए। बख्त खान ने बड़ी दिलचस्पी से इसका चेहरा देखते हुए कहा, जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था।
इस वक्त वो बर्गर से भी इंसाफ कर के इसे ख़त्म कर चुका था। इसके इस तरह देखने पर जनान ने भाभी से घूरी। क्या? इसने पूछा। तुमने भी मेरी शॉल ओढ़ी हुई है, इस क्या इतना मिस करती थी मुझे? बख्तार ने हाथ झाड़ते हुए पूछा। ज़्यादा खुश फहम होने का ज़रूरत नहीं है, कहते हुए जनान ने शॉल उतार कर पिछली सीट पर डाल दी। इसके शॉल अपने वजूद से उतारते ही इसके वजूद के हाथों-हाल नुमाया हुए थे। इसने सिर्फ गर्म सूट पहना हुआ था जो फिटिंग का था। इसके ऊपर इसने सिर्फ बख्त खान की शॉल ओढ़ी हुई थी जो अब वो उतार कर फेंक चुकी थी। बख्त खान के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। इसने एकदम जनान पर से अपनी नजरें हटाई और अपना निचला लब दारों तले दबाकर अपने जवान होते जज्बातों को काबू में करने लगा। लेकिन जज्बात थे गैर गुजरते लम्हे के साथ बाकी होते जा रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी। अपने बेलगाम जज्बातों के हाथों उसने गाड़ी एक साइड रोक ली। गाड़ी रुकते ही जनान ने बख्त खान की तरफ देखा। कुछ लम्हे बख्त खान स्टीयरिंग को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े एक टुक विंड स्क्रीन के बाहर देखता रहा। फिर देखते ही देखते इसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गया। जनान इसके चेहरे के बदलते रंग को देखती रही। इसी लम्हे बख्त खान ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में भी जज्बात की सुर्खी उतर चुकी थी। इसकी हालत देखकर जनान के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। बख्त खान कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर एक झटके में इसके नाजुक वजूद को पैसेंजर सीट से उठाकर अपनी गोद में मुंतकिल कर लिया। वो खान भी पूरा कहती। इससे पहले बख्त खान ने इसके होठों पर अपने होठ रख कर इसकी ज़बान को कुफल लगा दिया। वो इसके होठों पर जो शिद्दत से इसके झुका इसके होठों का जाम पी रहा था। इसकी बढ़ती शिद्दत पर जनान ने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे और अपने नाखून पूरी शिद्दत से इसके सीने पर गाड़ दिए। हाई नेक पहनने के बावजूद बख्त खान को इसके नाखून की चुभन अपने सीने पर बखूबी महसूस हुई थी। इसके नाखूनों की चुभन को बर्दाश्त करते बख्त खान का बायां हाथ इसके कमर से होते कंधों पर आया और फिर इसके शर्ट के गले पर आकर रुक गया। इसका हाथ अपने गले पर महसूस करके जनान की सांस जहाँ थी वहीं अटक गई थी। उसकी आंखें हैरत से और बड़ी हुई थी। बख्त खान इसकी आंखों में ये देख रहा था। हैरत से इसकी बड़ी होती आंखें देखकर इसकी आंखों में चमक उभरी। जनान ने एहसास नफ़े में सर हिलाया। बख्त खान मुस्कुरा दिया और फिर वही हुआ जो जनान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट बरपा गया। इसने जनान के गले के दोनों हुक खोले और इसके लबों को आज़ादी बख्श की। अब इसकी धड़कनों पर अपनी शिद्दत दिखाने लगा। जनान का दम खुशक हुआ था। वो इसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की सही करने लगी। लेकिन बख्त खान भी अपनी कर बाज आया था। दुनिया के महंगे से महंगे परफ्यूम में भी ऐसी खुशबू नहीं है जैसे तुम्हारे वजूद से आती है। तुम्हारी ये मसूरकुन खुशबू मैंने बहुत मिस की थी, बहुत। बख्त खान ने भारी गंभीर लहजे में कहा। इसकी आवाज़ का बोझलपन जनान को शर्म से दोहरा किए दे रहा था। इसकी हालत अजीब हो रही थी। वो बिना कुछ कहे इसके
सीने में अपना चेहरा छुपा गई। बख्त खान ने एकदम से अपने हिसार में जकड़ कर अपने सीने में भींच लिया। आई मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। झुक कर इसके कान में मीठी से सरगोशी करता वो इसके दिल को गुदगुदा रहा था। खातून, जरा अपने चेहरे का दीदार तो कराएं, हम भी देखें हमारी खातून हमारे बातों पर शर्माती हुई कैसी लगती है। बख्त खान ने मुसलसल से अपने सीने में चेहरा छुपाते देखकर कहा तो वो और शर्म से दूरी होती इसमें पनाह ढूंढने लगी। इसके अंदाज पर बख्त खान का कहका गाड़ी में गूंजा था। तुम इन काले शीशों का बहुत फायदा उठाता है खान। अब हम कभी तुम्हारे साथ इस गाड़ी में नहीं बैठेगा। इसके सीने से चेहरा निकाल कर जनान ने कहा, सिर्फ काले शीशों का नहीं, काली सड़कों का भी। बख्त खान ने सुनसान सड़क की तरफ इशारा किया तो वो और सुर्ख होती इसकी गोद से उठकर पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ब्रेकफास्ट करोगी? पिछली सीट से अपनी शॉल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बख्त खान बोला। जनान ने इसके हाथ से शॉल ली और अपने बटन बंद करके शॉल को दोबारा अपनी गिरद लपेट लिया। जवाब दो, ब्रेकफास्ट करोगी? बख्त खान ने फिर पूछा। वो सर झुकाकर बोली, ऑल राइट, बख्त खान ने कहा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधे घंटे बाद वो एक कैफ़े में मौजूद थे। वहाँ पर जनान ने अपने लिए एक प्लेटर ले लिया। इसमें कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर और एक पैन पिज़्ज़ा था। वो कैफ़े के कोने वाली टेबल पर बैठी मज़े से ये सब खा रही थी। एक बार बताओ खान, तुम हमको इतनी जल्दी क्यों लेने आ गया, वो भी इतना सुबह सुबह? अभी तो हमारा दिल भी नहीं भरा था और तुम हमको ले आया। और क्या आज तुम्हारा छुट्टी था जो तुम छुट्टी पर जाने की बजाय हमको लेने आ गया? जनान ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। इसकी बात सुनकर बख्त खान का दिल किया कि अपनी मासूम बीवी को एक बेबाक सा जवाब देकर इसके तोते उड़ाते, लेकिन जानता था सामने बैठा नाजुक वजूद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इसकी बेबाक बात का मतलब ही नहीं समझ पाएगी, और अगर समझ भी गई तो इस तरह रिएक्ट करेगी कि आसपास के लोग इन्हें देखने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारे लिए की है, और तुम्हें पता है मैंने अपनी अब तक की ड्यूटी में इतनी छुट्टियां नहीं की जितनी तुमसे शादी के बाद करने लगा हूँ। बख्त खान ने कहा। हमने कहा है हमारी वजह से छुट्टियां करो? वो मुंह बनाकर बोली। नहीं, तुमने नहीं कहा। सॉरी, नहीं तुमने कहा तो नहीं है, लेकिन वजह तो तुम ही बनती हो। बख्त खान ने कहा। ना बनाओ हमको वजह, जनान बोली। ना बनाओ मुझे वजह, बख्त खान ने कहा तो जनान ने सवाली नज़रों से इसे देखा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा बोलो। इसके देखने पर बख्त खान ने कहा, हमने वही बोला है, जनान तपाक से बोली और दोबारा स्ट्रॉ होठों से लगा लिया। नहीं, तुम ऐसे नहीं बोलती हो। एक बात बताओ मुझे, तुम नॉर्मल क्यों नहीं बोलती? हमारा क्या है ये सब? बख्त खान ने बड़ी दिलचस्प नज़रों से जनान को देखते हुए कहा, जो स्ट्रॉ होठों में दबा इसकी बात पर कॉफ़ी पीना भूल कर टुकर टुकर इसे देख रही थी। बोलो, मैं वही कह रही थी। बख्त खान किसी उस्ताद की तरह बोला। हम वही कह रहा था। इसने कॉफ़ी टेबल पर रख कर कहा। नहीं, बोलो मैं, हम। इसकी तान एक ही लफ्ज़ पर टूटती देखकर बख्त खान ने गहरा सांस भरा। कहो, मैं कह रही थी। इसने फिर कहा। हम कह रहा था।
जनान ने फिर वही कहा, जनान तुम हमको परेशान क्यों कर रहा है? खान मुंह बनाकर बोली, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम पर फर्ज बनता है मेरी इज्जत करना, इज्जत से मेरा नाम लेना। बख्त खान ने थोड़ा सा इसकी जानिब झुकते हुए कहा तो वो आंखें छोटी करके बख्त खान को देखने लगी। क्या हुआ, इस तरह क्या दिख रही हो? बख्त खान ने पूछा। हम कब तुम्हारा इज्जत नहीं करता, कब तुम्हारा इज्जत से नाम नहीं लेता? वो कुछ खफा खफा से अंदाज में बोली। मैडम मैं तुम्हारा शौहर हूँ और उम्र में तुमसे बड़ा भी हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे तुम कहकर पुकारती हो। शौहर को तुमसे मुखातिब किया जाता है। तुम्हारी मोहरे तुम्हारे बाबा को तुमसे मुखातिब करती हैं? इसने पूछा तो जनान ने मासूमियत से नफी में सर हिला दिया। तो मैडम तुम क्यों मुझे तुम कहती हो? बख्त खान ने मुस्कुरा कर पूछा। वो खामोश रही। अच्छा चलो, अब जैसा मैं कह रहा हूँ मेरे पीछे रिपीट करो। बख्त खान ने से खामोश देखकर कहा तो जनान इधर उधर देखने लगी। इधर उधर मत देखो, मुझे देखो और बोलो, मेरा नाम जनान है। बख्त खान इस तरह बोला जैसे किसी बच्चे को सिखा रहा हो। हमारा नाम जनान है, जनान ने कहा तो बख्त खान ने इसे घूर कर देखा। क्यों घूर रहा है, क्यों घूर रहा है? हमने वही बोला जो तुमने कहा, इसने कहा तो बख्त खान का दिल गया कि अपना सर टेबल पर देकर मार दे। फिर तुम? बख्त खान ने से टोका तो जनान ने दांतों तले में जबान दबा ली। आपने जो कहा मैंने वही कहा। वो उतनी मासूमियत से बोली कि बख्त खान को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया। नॉर्मल बोलो जनान, आज से तुम हम नहीं मैं कहूँगी और तुम नहीं आप कहोगी, ठीक है? बख्त खान ने कहा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। हम कोशिश करेगा। नहीं नहीं, मैं कोशिश करूँगी। इसने तेज़ी से खुद को दुरुस्त किया। बख्त खान मुस्कुराया। चलो उठो, बाकी सब कुछ गाड़ी में खा लेना। बख्त खान ने टेबल पर रखे सारे लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं हम मतलब मैं यहीं बैठकर खाऊंगी। जनान ने कहा, जनान मैं जितना कहूँ इतना सुन लिया करो, उठो और एक गाड़ी में बैठकर खा लेना। वो तो टूक अंदाज में बोला। नहीं हम नहीं बैठेगा, हमको पता है तुम गाड़ी में ले जाकर हमको फिर परेशान करेगा। इसके मुंह से गाड़ी का सुनते ही जनान को कुछ देर पहले वाला सारा वाक़या याद आ गया, जब वो सुनसान रोड पर गाड़ी रोककर इसके साथ अपनी मनमानी कर चुका था। गाल सुर्ख हुए जनान के गाल सुर्ख हुए थे। गाड़ी में बैठने के बाद इसकी खता सिर्फ इतनी थी कि इसने अपने ऊपर से बख्त खान की शॉल उतार दी थी, जिसकी वजह से इसके वजूद के खूबसूरत हाल इसके शौहर की नज़रों का मरकज़ बन गए थे और जिन पर इसके शौहर ने खूब अपनी शिद्दतें लुटाकर अपनी मनमानियाँ की थी। हम चले गए, लेकिन हमको अभी पहले हम चलेंगे, लेकिन हमको अभी पहले ही खाना है और यहीं बैठकर खाना है। वो सब याद करके जनान हर धर्म अंदाज में बोली, नहीं मानोगी मेरी बात। बख्त खान ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर इसकी तरफ झुकते हुए धीमी आवाज़ में पूछा तो जनान ने सब आंखें उठाकर इसे देखा, फिर इनकार में सर हिला दिया। बख्त खान से इसे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन हिम्मत करके इसने कह ही दिया, तुम्हें पता है सिर्फ एक तुम ही हो जो बख्त खान को मना करती हो, वरना दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई इसकी बात से इनकार कर दे। बख्त खान ने इसे 5 फीट की लड़की को जो इसके सीने तक आती थी, इसे
देखते हुए कहा, तो ये बात तुम हमको क्यों बता रहा है? वो बड़े मज़े से फ्रेंच फ्राइज खाते हुए बोली, इसीलिए ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे शौहर का कितना रोब है। वक्त खाने से मज़े से फ्रेंच फ्राइज खाते देखकर दांत खिचखिचाते हुए कहा, हाँ तो हम पर नहीं चलता तुम्हारा रोब। वो और मज़े से बोली, वाकई तुम पर तो नहीं चलता, ये शायद तुम पर मैं चलाना नहीं चाहता। तुम्हारे मामले में तो मैं खुद को अलग ही पाता हूँ, लगता ही नहीं मैं वो बख्त खान हूँ जो औरों के लिए हूँ। इसने दिल में सोचा और मज़े से खाती बेटी जनान को देखता वो इसकी बात को किसी भी खातिर भी लाए बगैर देखा। वो उसकी बात को किसी भी खातिर भी लाए बगैर अपने काम में मसरूफ़ थी। अगर तुम शराफत से नहीं उठी तो कसम से तुम्हारी गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाऊंगा। वो इसकी तरफ झुकता हुआ गुस्से से बोला। जनान ने एकदम इसकी तरफ देखा। इसकी सी आंखों में गुस्से की सुर्खी देखकर जनान ने थूक निकला था। हम मतलब मैं ये खा रही हूँ। आपको क्या लगता है? आपको क्या तकलीफ है? आप भी खा लें, मैंने आपको खाने से मना थोड़ी किया है। वो नाक से कोड़कर बड़े मज़े से मासूम से अंदाज में बोली, मैं क्यों खाऊं? तुमने इससे पहले मुझे ऑफ़र किया था, जो अब कर रही हो। बख्त खान इसके कहने पर अपना आईब्रोज काकर दांत खिचखिचाते हुए बोला, पहले नहीं किया था, अब कर रहा है ना? मतलब कर रही हूँ ना? वो खुद को दुरुस्त करते हुए उलझकर बोली, और एक बार बताओ, जब आप गाड़ी में मज़े से बर्गर खा रहे थे आपने मुझे ऑफ़र की थी, नहीं ना? मैं तो फिर भी कर रही हूँ। जनान ने ज़बान फिसलते फिसलते शिकवा ज़बान की सॉरी जनान की ज़बान फिसलते फिसलते शिकवा कर गई। बख्त खान ने हैरान होकर इसे देखा। वो कब मज़े से खा रहा था? इसने तो सबसे पहले जनान को ही ऑफ़र किया था, लेकिन वो गुस्से में इसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका शौहर इसे बिना बताए लेने आ गया था। खुद ही नाराज़ होकर अब वो कितनी मज़े से खुद ही इससे शिकवा कर रही थी। इसके अंदाज पर बख्त खान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था, जिसे वो नामहसूस अंदाज में छुपा गया। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? बख्त खान ने जैसे कन्फर्म करना चाहा। नहीं, जनान ने बड़े मज़े से इनकार किया। इस वक्त वो ये भूल चुकी थी कि अभी कुछ घंटे पहले ही वो इस शख्स के सामने शर्म से पागल होती बार बार इससे अपनी नज़र चुरा रही थी, और अब कुछ घंटों बाद ही इस इंसान के सामने बैठकर इसकी सी आंखों में बेखौफी से देखती इसकी हर बात का दूबद जवाब दे रही थी। तो मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबके सामने अपनी बाहों में उठा के गाड़ी तक ले जाऊं? बख्त खान एकदम से इसके नज़दीक होता, इसके कान में सरगोशी से कहता, इसको सटपटाने पर मजबूर कर गया। लहजा और अंदाज बाज़ाहिर तो सपाट थे, लेकिन दिल में वो अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था, जिसमें इसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इसकी बेबाक बात पर जनान की आंखें फैल गईं। वो सुर्ख पड़ती जल्दी से अपनी नज़र झुका गई, और सिर्फ नज़र नहीं झुकाई बल्कि अपनी कुर्सी भी पीछे कर दी, इससे फासला कायम कर गई, जिस पर बख्त खान के होठों के एक कोने पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उभर कर मातूम हुई थी। वो इसको दिलचस्पी से देखता दूर हुआ था। आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। वो नज़र झुकाए पूरा धमाद लहजे में बोली थी। इसका खुद पर इतना एतमाद बख्त खान को और मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मुझे अभी तक जानते नहीं हो, इवन कोई भी मुझे नहीं जानता कि मैं कितना बेबाक हूँ, और जो मैं कहूँ
اسے کرنے کے لیے کس حد تک گزر سکتا ہوں؟ بخت خان اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑی کانفیڈنس سے بولا تھا، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ کس حد تک بے باک ہے، اور جو وہ کہے اس بات کو پورا کرنے کے لیے وہ کس حد تک گزر سکتا ہے۔ ہم جانتا ہے تم کافی بے باک ہے، جنان منمناتے ہوئے بولی۔ اچھا، تم کیسے جانتی ہو؟ بخت خان نے تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر جنان کے گلابی گال اور سرخ ہوئے تھے۔ اپنی بے باکی میں وہ شخص جگہ کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے دیکھنے پر جنان نے سر پلٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر بتاؤ، بخت خان نے کہا تو جنان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ تم ایک بات بتاؤ خان۔ جنان پھر اپنے انداز میں بولی تو بخت خان جنان پھر اپنے انداز میں بولی تو بخت خان نے ایک دم اسے ٹوکا۔ میرا مطلب ہے آپ ایک بات بتائیں خان۔ وہ سنبھل کر بولی۔ پوچھو۔ کیا؟ بخت خان نے کہا۔ سارے پٹھان اتنے بے باک ہوتے ہیں یا پھر تم میں؟ میرا مطلب ہے آپ میں کچھ خاص ہے، اس نے پوچھا۔ مجھے اوروں کا نہیں پتا، لیکن میرے اندر بے باکی کے جراثیم تھوڑے زیادہ ہیں، بخت خان نے بڑے مزے سے جواب دیا، جس پر جنان نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں پسند نہیں آئی میری بات؟ اس کے منہ بنانے پر بخت خان نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے صفا چٹ انکار کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ بخت خان نے کہا۔ تمہیں پٹھان برے لگتے تھے نا؟ اس نے پوچھا تو جنان نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بخت خان جیسے اس کا جواب جانتا تھا، اسی لیے اس نے جنان کے ہاں میں سر ہلانے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اب بھی برے لگتے ہیں؟ یہ سوال اہم تھا۔ اس کا جواب بخت خان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اب سب برے نہیں لگتے، کچھ اچھے بھی لگتے ہیں۔ اس نے محبت بھری نظروں سے بخت خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، واقعی؟ بخت خان اپنی گھنی سیاہ بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے خوشگوار انداز میں بولا تھا۔ اس کے انداز پر جنان مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بخت خان کو خود پر رشک کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جنان اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اسے صرف پٹھانوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے مردوں میں سب سے پیارا لگنے لگا ہے۔ اس کی مسکراتی سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بخت خان سنجیدہ ہوا تھا۔ تمہیں میں اچھا لگتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو جنان نے شرما کر پلکوں کی چلمن جھکا لی۔ میری بات کا جواب دو جنان، بخت خان نے کہا تو جنان نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے اقرار پر دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایک بات کہوں؟ بخت خان نے پوچھا۔ جنان نے ہنکارا بھرا۔ مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، نہ فریب کرنا، نہ کبھی جھوٹ بولنا۔ مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کرنے والوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے بہت نفرت ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں میں انہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں تم پر بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ میرا بھروسہ بہت قیمتی ہے، اسے کبھی مت توڑنا۔ بخت خان کہہ رہا تھا اور جنان سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ نہیں کرے گا خان، کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی تمہارا بھروسہ نہیں توڑے گا۔ ہم تمہارا بیوی ہے تو ہمیشہ تمہارا وفادار بن کر رہے گا۔ وہ پھر اپنے انداز میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جنان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سنبھل گئی۔ وہ کیوں مسکرایا ہے؟ تھوڑا ٹائم لگے گا، اس نے منہ بسور کر کہا۔ ٹھیک ہے، بخت خان نے کہا اور ساری چیزیں اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اس سے بھی اٹھا لیا۔
5 منٹ بعد وہ اپنی گاڑی میں موجود تھے۔ بخت خان دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ خان ہم کو تم سے کچھ بتانا ہے، کچھ سوچ کر جنان نے کہا۔ کیا؟ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے بخت خان نے پوچھا۔ ابھی نہیں، گھر چل کر بتائیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر بخت خان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ کوئی سیریس بات ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ ہاں، جنان نے جواب دیا تو بخت خان کچھ الجھ گیا۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔